Good evening, everyone. A very warm welcome to all of you. So, a very interesting session we have today, and we are going to talk about semi-annual pivot. Okay, so we'll start with semi-annual pivot, the topic for the day. But before we do that, let's quickly do some recap about the CPI inflation numbers. Yesterday, I had posted a message. The first reaction, I think Amol had posted his news about CPI inflation, which was at 9.1, and to which I replied, it is not good, right? Even in today morning's message, I was categorical when I mentioned about, just a minute, let me just look for the message. Structure, I think. So this is today, Thursday's message. Okay. Yeah. So I'm talking about this particular message. So I was talking about balance of market is not aggressively bullish for next fortnight. Keep that in mind. Today we will get our SAP values, which will guide us for next 6 months. But looking at yesterday's CPI data, the rally may not be ferocious. Okay. It is most likely to be sideways or dull till expiry as in monthly expiry. Range can be 15,700 to 16,300. Now, this is the range I am talking about for the rest of 15 days. I'm talking about the range starting from today, like 14th of July, till the expiry day, that probably is 28th of July, I believe. Right? So we are going to look at it from this perspective. Any questions with respect to this particular message? Only about this particular message. Any question about this particular message? Balance of market is not aggressively bullish for next fortnight. Keep that in mind. Today we will get our SAP values, which will guide us for the next 6 months. But looking at yesterday's CPI data, the rally may not be ferocious. It is most likely to be sideways or dull, maybe volatile till expiry. Range can be 15,700 to 16,300. Any questions so far? Sir, what is CPI data, miss? Excellent. कौन है ये? Jayashree. Arey, Yes, Jayashree, sir. good to see you. Hi, how are you? I am very good. Superb. जयश्री, क्या होता है, सीपीआई जो डेटा है यूएस में, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसका डेटा है ये. तो इन्फ्लेशन कितना है, महंगाई कितनी बढ़ी हुई है यूएस मार्केट में, यूएसए में एज अ कंट्री, नॉट इन मार्केट. वी ऑलवेज कीप ऑन टॉकिंग अबाउट मार्केट, तो मेरे मुंह से मार्केट आ जाता है. सो यूएस में इन्फ्लेशन का क्या लेवल है, इंडेक्स क्या है, तो वो लेवल इस बार जो आया था वो है 9.1% का. अब 9.1% में ऐसी क्या खास बात है जो पहले नहीं था. सो पिछले 40 या 41 सालों में, 40 to 41 ईयर्स, ये नंबर कभी भी 9.1% तक नहीं गया था. अब इंडिया में भी एक इन्फ्लेशन का इंडेक्स है, बट इंडिया के नंबर्स थोड़े गोलमोल है, दे आर नॉट वेरी एक्यूरेट. सो हमारे लिए ये जो सीपीआई डेटा है, और ये सीपीआई डेटा जो जुलाई का पब्लिश हुआ है, ये ज्यादा मायने रखता है. बिकॉज अगर एक तरह से महंगाई बेकाबू हो रही है, एक तरह से महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो उसे कंट्रोल में, काबू में लाने के लिए कुछ उस पे सॉल्यूशन, कुछ उपाय होने चाहिए. वो उपाय क्या हो सकते हैं? एक तो जो आपका इंटरेस्ट का रेट है, उस इंटरेस्ट के रेट को बढ़ाया जा सकता है. सबसे पहला एक ओवरव्यू जो हमारे सामने आया है वो ऐसे आया है कि सीपीआई डेटा, वंस द सीपीआई डेटा वाज पब्लिश्ड, द फर्स्ट रेमेडी दैट केम अप, दैट नेक्स्ट जो फेड मीटिंग रहेगा, नेक्स्ट फेड मीटिंग में द रेट हाइक विल बी अराउंड 100 बेसिस पॉइंट, मतलब 1% से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा. सो जनरली क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जैसे बढ़ाया जाता है,
तो लोग क्या करते हैं, सोचना शुरू करते हैं। लेट्स से किसी को कार लेनी है, इफ समवन वांट्स टू बाय अ कार, तो वो कार लेने के लिए उनको, अगर उनका एक बजट है, हाँ 15 लाख रुपए का बजट है, और सडनली क्या होता है, इंटरेस्ट रेट 1% से बढ़ जाता है, 2-1.5% से बढ़ जाता है, तो उन्होंने जो कुछ भी ईएमआई पे करने के बारे में सोचा होगा, वो ईएमआई की इंटरेस्ट बढ़ जाएगी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जो पहले उन्हें मान लीजिए कि एक 10 लाख रुपए के लोन के लिए लगभग 2,000 रुपए का अगर एक ईएमआई है एक महीने का, लेट्स से 5 इयर्स का टेन्योर है, 5 साल का टेन्योर है, मतलब 60 महीनों का टेन्योर है, तो ओके। वो सिचुएशन में क्या होगा कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से 2,000 की बजाय उनका ईएमआई कुछ प्रतिशत बढ़ जाएगा, कुछ परसेंटेज से बढ़ जाएगा। तो वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली फिर उन्हें क्या होगा, उनको अगर 10 लाख रुपए का लोन लेना है, तो वो जो भी बढ़ोतरी हुई है या जो भी इंटरेस्ट हाइक हुई है, उसकी वजह से उन्हें वो लोन महंगा हो जाएगा, एंड दे विल अवॉइड बाइंग दैट कार फॉर नाउ, और दे विल सेटल फॉर अ चीपर कार, थोड़ी सस्ती गाड़ी लेने के लिए वो सोचेंगे। सेम चीज होगी घर लेने के लिए, कोई भी चीज आप बाय करने वाले हो, कोई भी खरीदारी आप करने वाले हो, तो जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड जो है वो नेचुरली कैसे कम होगी, इस पे गवर्नमेंट का पूरी तरह से फोकस होता है। अब सवाल ये आता है कि ये तरीका सही होगा या गलत होगा इन्फ्लेशन में काबू लाने के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट जब भी ऐसे हुआ है, और गवर्नमेंट का, या जैसे फेडरल एजेंसी है, या फिर इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, तो ये हमेशा महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्या उसमें वो सक्सेसफुल होते हैं? कुछ बार होते हैं, कुछ बार नहीं होते। इस बार ऐसा क्यों कहा गया था कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो डेट के, यानी कर्जे के एक डेथ स्पाइरल में है, तो यहां से ना वो सब चीजें बढ़ती हुई जाएगी, या उनका जो डेट का ट्रैप है वो बढ़ता हुआ जाएगा, और इट विल इसेंशियली कॉज अ ग्लोबल मेल्टडाउन। मतलब जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज है, उन सारी वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इसका एक बुरा असर होगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये सभी चीजें कितने हद तक सच होने वाली है, कितने हद तक ये इमीडिएटली हमारे सामने आएगी, ये चीजें हमें आज पता नहीं है। बट अगर हमें चार्ट की बात करूं, मैं तो टेक्निकल एनालिस्ट हूं, तो मैं अगर चार्ट की बात करता हूं, तो मुझे ऐसे लगता है कि यहां से इमीडिएटली ब्रेकडाउन आइडियली नहीं होना चाहिए, और यहां से एक थोड़ी थोड़ी बहुत हमें रैली मिलनी चाहिए, और वो रैली मिलने के बाद फिर हमें अगली जो गिरावट है वो आइडियली मिलनी चाहिए। अब इस सभी चीजों का, अब ये दोनों चीजें ना, अच्छा हुआ कि सीपीआई डेटा कल आ गया है, और उसके साथ हमारा सैप भी आज आ गया है, तो सैप के कैलकुलेशन से हमें पता चलेगा कि इन विच डायरेक्शन, इन विच ट्रेंड वी हैव टू प्ले। सो लेट अस अंडरस्टैंड सैप, और उससे हमें ये चीजों को थोड़ा समझने में आसानी होगी। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द डिस्कशन अबाउट सैप, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि सीपीआई का डेटा करंटली जो आया है 9.1% का, ये पिछले 40-41 सालों में हाईएस्ट इन्फ्लेशन रिकॉर्ड किया गया है। अब उसे काउंटर करने के लिए दिल बी अ फेड का, यूएस फेड का एक रेट हाइक आएगा। आई थिंक 26-27 को उनकी मीटिंग होने वाली है, तो उस मीटिंग में भी एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि लगभग 1% की इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी वो कर देंगे, तो वो सब चीजें हमारे सामने आएगी। तब तक हमारा इमीडिएटली ट्रेंड अगर चेंज होता है तो या कैसे होगा, उसकी जानकारी हमें अभी मिलेगी। वी कैन जस्ट हैव एन ओवरव्यू अबाउट इट बाय यूजिंग द सिंपल कंसेप्ट ऑफ सेमी एनुअल पिवोट, जो हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। आर वी गुड? डज इट आंसर योर क्वेश्चन? जयश्री, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Cool. Guys, any other question with respect to this? Any other question with respect to this? Sir. Hello. Yes, Vaibhav. Sir, what you said about the fortnight thing, like market can be sideways, means वो part I wasn't clear about it. मतलब मार्केट नेक्स्ट फोर्टनाइट तक बुलिश क्यों रहेगा वगैरह वगैरह। हाँ ठीक है, आते हैं वहां पे भी आते हैं। यस। सो लेट्स से हमने एक 16,300 का रेंज देखा था, 16,300 से लेके 15,800 आई थिंक। See, now this is the range that I'm expecting market to be in
टिल नेक्स्ट एक्सपायरी, हमारी अगली एक्सपायरी तक. नाउ सी प्राइमरीली रीजन क्या है वैभव, टू आंसर योर क्वेरी. दिस इज द रेंज विच आई हैड गिवन इन टुडे मॉर्निंग्स मैसेज. मेरा फर्स्ट जो मैसेज था वहां पे, दैट इज 15,700. सो मुझे थोड़ा और नीचे जाना होगा. 15,700. सी हिस्टोरिकली जब भी हम ये चीजों को देखते हैं ना, तो सबसे सिंपल एक बात आती है, वी आर यूजिंग फिबोनाची. सो मैंने तो पहले क्या किया, यहाँ पे जो टॉप है उस टॉप की लेवल को कंसीडर किया है. इफ यू रिमेंबर मार्केट क्या लगता है का जो स्क्रीन था, सो एज पर मार्केट क्या लगता है, दिस इज एग्जैक्टली द प्लेस जहां पे हमारा एक रिवर्सल जोन था. इफ यू रिमेंबर, this is the chart I'm talking about. I was talking about this potential reversal zone between 16,200 and 16,250. Why it is essential, important for traders to mark this zone is because इस particular zone के अंदर से ही हमें जो potential reversal है वो potential reversal मिला है. प्राइस ओपन हुई थी इस लेवल के ऊपर, इवेंचुअली इट जस्ट स्टेड विद इन दिस पर्टिकुलर रेंज. एंड मंडे को भी जब उसने एक हाई टेस्ट किया तो इट मेड अ हाई ऑफ 16,248. जो हमारा रेंज का हायर लेवल था दैट वाज 16,250. तो इस लेवल से फिर हमें सेलिंग जो है वो सेलिंग दिखाई दी. दिस इज वन पार्ट ऑफ इट. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैंने थोड़ा एक 50 पॉइंट्स का लीवे कंसीडर किया है. सो 16,300 इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. इसेंशियली अपर रेंज के लिए मेरा सिंपल सा एक थॉट प्रोसेस ऐसा है कि जब तक ये हाई इंटैक्ट है तब तक, मतलब यहां पे मैंने लिखा हुआ है एज लॉन्ग एज, और यहां पे कहीं लिखा था मैंने एज लॉन्ग एज, हाँ, क्रिटिकल लेवल मस्ट बी टेकन आउट फॉर नेक्स्ट बुलिश टारगेट. मतलब अगर जब तक ये प्रीवियस जो हाई है ये टेक आउट नहीं होता है, जो लेवल है 16,275 का, तब तक नेक्स्ट बुलिश ट्रेंड नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? कैन एनीवन आंसर मी कि क्यों अगला बुलिश ट्रेंड नहीं शुरू होगा? is on the basis of a plain and simple Dow theory. I hope it is clear to all of you, right? Perfect, excellent. So many people have answered, excellent. So based on simple Dow theory, so ये हमारा एक range हो गया, level हो गया. Now when we calculate Fibonacci, let's say from this high to this low, तो हमारा 50% का लेवल कहां पे है? Where is our 50% level? So our 50% level comes to 15,729. Is it getting clear, Vaibhav? Yes, sir. Yes. So basic Dow theory, Fibonacci. My world is limited. है ना, मुझे बहुत कम चीजें समझ में आती है, तो मैं क्या करता हूँ, चीजों को जितना आसान रख पाऊं उतना रखने की कोशिश करता हूँ. सो फॉर मी, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट ब्रेकिंग अबव 16,300, तो नेक्स्ट बुलिशनेस का कोई गुंजाइश नहीं है. And as long as it is above 15,700, so we are in a healthy Fibonacci retracement zone. तो हमें यहाँ पे कहीं पे अगर एक सपोर्ट मिल जाए और वहां से फिर बाउंस मिलता है, फिर हम अगली चीजों के बारे में सोचेंगे. बट सी द बेस्ट पार्ट इज दैट टुडे बीइंग 14th of July, तो हमारे पास आज सैप का भी लेवल आया है. तो लेट्स कैलकुलेट सैप का लेवल क्या है, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट लेट अस एनालाइज कि व्हाट डू वी एक्सपेक्ट इन कमिंग डेज. सो निफ्टी का स्ट्रक्चर कैसे होगा, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर कैसे होगा, and what to look for in this particular zone, in this scenario. Cool. So I hope both the questions are answered now. अब क्या करते हैं? I'm muting everyone. So primarily whenever we talk about semi-annual pivot, है ना, semi-annual pivot जो concept है as a concept, so semi-annual concept, semi-annual pivot का जो concept है ये मेरा concept नहीं है ना. मेरे मेंटोर है सर राजू चोकसी, तो उन्होंने ये कंसेप्ट दिया है. ही इज द वन हु हैज गिवन दिस कंसेप्ट टू द एंटायर वर्ल्ड. तो ये उनकी तस्वीर है एंड इंदौर में रहते ही है, एंड ही इज अ अमेजिंग ट्रेडर. ही इज अ फॉलोअर ऑफ WD ज्ञान, और ये सब चीजें जो है बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं. आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैं इनके साथ एसोसिएटेड हूँ. तो चीजें बहुत अच्छी तरह से जा रही है. नाउ द थिंग इज दैट इन्होंने ये जब कंसेप्ट को डिवाइस किया था, डेवलप किया था, बहुत कॉमनली आप देखोगे कि कैमरिला पिवोट होते हैं या फिबोनाची के बेसिस पे पिवोट होते हैं, जहां पे कोई मंथली टाइम फ्रेम पे पिवोट कैलकुलेशन करता है, कोई डेली टाइम फ्रेम पे पिवोट कैलकुलेशन करता है,
कोई एनुअल पिवोट कैलकुलेट करता है, कोई मंथली पिवोट या क्वार्टरली पिवोट कैलकुलेट करता है। ये सारे कैलकुलेशन में ना पिवोट इज बेसिकली अ गाइडलाइन। पिवोट एक 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 लाइन है, एक सपोर्ट लाइन कहिए, रेजिस्टेंस लाइन कहिए। अगर प्राइस उसके ऊपर है तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, अगर प्राइस उसके नीचे है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सो सेमी एनुअल पिवोट जो है ये भी उसी कंसेप्ट के बेसिस पे तैयार होता है। सेमी एनुअल पिवोट, एज द नेम सजेस्ट, यू गेट सेमी एनुअल पिवट ट्वाइस इन अ ईयर। तो पहला जो पिवट होता है वो जनवरी 1 से लेके जनवरी 14 तक का आप कैलकुलेशन करते हो, प्राइस के हाई लो ओपन एंड क्लोज का, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू गेट अ सेमी एनुअल पिवट। वैसे ही सेकंड जो पिवट होता है वो हमारा 1 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक कैलकुलेशन होता है। नाउ लेट्स से जनवरी का जो पिवट है, 14 जैन को हमें जो पिवट मिलता है वो 14 जनवरी का पिवट 14 जैन से लेके 14 जुलाई तक वैलिड है। सिमिलरली जो 14 जुलाई को आज जो पिवट हमें मिला है, दिस पिवट विल कीप ऑन गाइडिंग अस टिल 14 जनवरी 2023। ओके, सो ये उसका एक तरीका हुआ। अब ट्रेड कैसे करना है पिवट के बेसिस पे, उसके रूल्स क्या है, ये सब चीजों को समझ लेते हैं। बट बिफोर वी डू ऑल दिस थिंग्स, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ डू वी कैलकुलेट पिवट। सो एवरीवन रेडी विथ योर कैलकुलेटर्स? कैलकुलेटर निकाल लीजिए। और करना क्या है हमें, बहुत सिंपल है। वी नीड डेट्स और डेटा फ्रॉम 14th, जो आज की डेट है 14 से लेके हमें 1 जुलाई तक का डेटा चाहिए, या फिर आप ऐसे कहिए कि 1 जुलाई से लेके आपको 14 जुलाई तक का डेटा चाहिए। ठीक है, सो आपको क्या करना है, पहले तो फर्स्ट डे का आपको ओपन देखना है, राइट। सो 1 जुलाई का ओपन है 15,703.70। सो ओपनिंग प्राइस है 15,703.70। देन यू आर लुकिंग एट द लो। ओके, लो का प्राइस क्या है। सो लो नेचुरली हमें उसी दिन का जो लोएस्ट प्राइस है, मैं इस रेक्टेंगल को हटा देता हूं। सो लोएस्ट प्राइस उसी दिन का लोएस्ट प्राइस है, विच इज 15,511.05। ओके, देन कम्स द हाईएस्ट प्राइस, हाई। अब हाई हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, हाई विल बी कैलकुलेटेड कि 1 से लेके 14 तक जो भी बीच में हाईएस्ट हाई है वो वैल्यू हम लेंगे, विच इज 16,275.50। 16,275.50। एंड क्लोजिंग प्राइस हमें 14 की आज की क्लोजिंग प्राइस चाहिए, विच इज 15,938.65। आई रिपीट 15,938.65। अब इन सारे नंबर्स का हमें टोटल करना है। सो टोटल क्या आता है इसका, सर 63,428.90। 63,428.90। 63,428.90। ओके, एंड डिवाइडेड बाय 4। इसे 4 से आप डिवाइड कीजिए। सो यू विल गेट योर सैप का वैल्यू is 15,857.225. 225। ओके, Yes. 15,857.22. 22। ओके, इज दैट करेक्ट? परफेक्ट, ठीक है। सो विल फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन विल कंसीडर इट 15,857.2। हाँ, इसे हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। सो आई विल जस्ट टेक दिस नंबर और मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूं।
यहां पे नंबर ऐड करता हूं। सो ये मेरा एक लेबल तैयार हुआ। नाउ आर वी राइट एट द लोएस्ट प्राइस ऑफ द डे? आज के दिन का जो लोएस्ट प्राइस है बस वहीं पे हम हैं लगभग। सो लोएस्ट प्राइस इज 15,858.20 एंड द सैप लेवल इज एट 15,857.22। ठीक है। सो अब क्या हुआ है? दिस टेल्स अस, are you guys now understanding why I was saying that the structure is, the balance is lost, the structure is changed? So we are in a dangerous territory right now. ये dangerous territory का मतलब क्या है? सेमी एनुअल पिवोट सजेस्ट अस कि अगर प्राइस हमारी सेमी एनुअल पिवोट के ऊपर है तो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ इट मे रिमेन बुलिश, और अगर प्राइस हमारी सेमी एनुअल पिवोट के नीचे है तो इट मे रिमेन बेयरिश फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, इजंट इट? तो ये सुन के सब लोग बहुत खुश हो गए होंगे, है ना? ऐसा नहीं है। सो इट्स नॉट दैट कि अभी प्राइस करंटली ऊपर है तो ये अगले 6 महीनों के लिए ऊपर ही रहेगी। नो, नॉट नेसेसरीली। तो जैसे हम हमेशा कोई भी कंसेप्ट को देखते हैं ना, दिस इज नॉट अ होली ग्रेल। ऐसा नहीं है कि ये तरीका है तो ये फुल प्रूफ तरीका है, इसमें आपको कोई भी ट्रेड गलत जाएगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ कंसेप्ट। और कंसेप्ट ये कैसे वर्क करेगा, कंसेप्ट ये कैसे काम करेगा? अगर मान लीजिए कि आप जुलाई 14 को आपको सैप का नंबर मिला है और उसके बाद अगर हम इसे ब्रेक करके नीचे जाते हैं, राइट, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि हम सैप के नीचे ही अगले 6 महीनों के लिए रहेंगे। लेकिन बिफोर द सैप सेटल्स, बिफोर द सैप एक्चुअली सेटल्स, इट माइट गिव अस सम विपसॉज, वहां पे कुछ वोलाटिलिटी हो सकती है, राइट? इफ समवन रिमेंबर्स, पिछले जनवरी का हमारा पिवट क्या था? व्हाट वाज द पिवट ऑफ लास्ट जनवरी? 18,000 समथिंग। जनवरी का पिवट याद है किसी को? Sir, I've sent a file which have marked the pivots of all the Yeah, I last got 10 it. years. 17,830. हाँ, 17,828. Yes, cool. So निफ्टी के लिए 17,828.3। राउंड इट ऑफ, 2.2 मत रखिए या 0.28 मत रखिए। 28 है तो 3 कर दीजिए, 22 है तो 2 कर दीजिए। हाँ, कीप इट सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत रखिए उसे। सो ये एक लेवल है हमारा सैप का, इसे मुझे कोऑर्डिनेट्स में भी डालना पड़ेगा। 828.3। कूल। अब क्या हुआ, ये सैप का नंबर जब आया था, लेट्स गो टू पास्ट में जाते हैं। सो अराउंड समवेयर हियर, हम लोग जब यहाँ पे जनवरी में थे, सो समवेयर अराउंड हियर 12th 13th 14th 15th था। सो 14th में यहाँ पे हमें सैप का नंबर मिला, दैट नंबर वाज एट 17,828। इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, प्राइस फिर नेक्स्ट सैप के बाद प्राइस इवेंचुअली क्रॉस्ड दिस लाइन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसे क्रॉस कर दिया प्राइस ने। जब इसे क्रॉस किया है नीचे की तरफ, देन देयर वाज अ फिरोशियस डाउन मूव। फिर क्या हुआ, जैसे ही प्राइस सैप के नीचे है तो सैप विल एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस, और सैप से प्राइस में एक तेजी से गिरावट हो गई। इवेंचुअली प्राइस ने रैली की है, उसके ऊपर वो सस्टेन नहीं हो पाई है ना? अगर हम हमारा वीकली का कैंडल देखें तो प्रोबेबली वीकली कैंडल में, हाँ, सो वीकली कैंडल में वहां पे केवल टच एंड गो ही होगा। कैन यू सी दिस? इट इज जस्ट टच एंड गो। तो प्राइस उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई है एंड वी गॉट अ वन साइडेड फॉल। सो अगले 6 महीनों तक प्राइस जो है वो सैप के नीचे रही है। Isn't it amazing conceptually? But what I want all of you to understand that SAP is not magic. हाँ, ऐसा कोई नहीं कि होली ग्रेल है। तो there will be some whipsaws, वहां पे कुछ आपको वोलाटिलिटी अगर है तो प्राइस ऊपर नीचे होती हुई दिखाई देगी। तो हाउ टू ट्रेड यूजिंग SAP, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करते हैं वहां पे,
सैप का अगर कैलकुलेशन है तो सैप के कैलकुलेशन में, इस कैलकुलेशन के अंदर व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ऐड, एक यहां पे हमें रेंज ऐड करनी है। ओके, अब ये रेंज क्या होगी? सैप की जो वैल्यू है हमारी 28, तो 28 में आपको 45 ऐड करना है। लेट्स से 17,828 हमारा प्राइस है, इसमें हम 45 ऐड करते हैं, सो द नंबर कम्स टू 873. You can round it off to 75 as well. और 28 से अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो 17,828 minus 45, so this come to 17,783. so ये मुझे एक रेंज मिल जाती है। ओके, ये रेंज का एडवांटेज क्या है? जब तक इस रेंज के अंदर प्राइस है, I will not react, I will not initiate a trade. Whenever the price is closing below this range, ये lowest range के नीचे चला जाता है, तो I will initiate the trade. What will be my stop loss? What will be my stop loss? Anybody? SAP 45 points का हम वहां पे, या so 45 points का हम वहां पे एक लीवे रखेंगे, राइट? सो इफ समवन इज इनिशिएटिंग अ ट्रेड हियर, यहां पे अगर कोई ट्रेड इनिशिएट कर रहा है 17,783 के पास, देन द सैप वैल्यू ऑफ 17,828 विल बी द स्टॉप लॉस। अगर बुलिश ट्रेड भी लेना है तो जब प्राइस इसके ऊपर चली जाएगी, तो यहां पे मान लीजिए किसी ने बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर दिया है, राइट? तो वो बुलिश ट्रेड इनिशिएट करने के बाद क्या होगा कि आप यहां पे ट्रेड तो इनिशिएट कर दोगे, बट नेक्स्ट डे, थर्ड डे आपकी प्राइस फिर से सैप पे आ जाती है, योर स्टॉप लॉस इज हिट, एंड देन यू इनिशिएट द ट्रेड फ्रॉम हियर फॉर अ बेरिश ट्रेड, और वो बेरिश ट्रेड आपका जो है वन डायरेक्शन में चलता जाएगा। साउंड्स गुड, लाइक अ प्लान? इज इट फैंटास्टिक? आर वी गुड? एनी क्वेश्चंस? Cool. So I take this as no questions. यहां तक कोई सवाल नहीं है। So similarly, what we'll do here at this point around, we'll clone this. इसे क्लोन करते हैं और इसे लेके आते हैं हमारे सैप पे। Okay, so because we have 857 का हमारा लेवल है करंटली, सो हमारा अपर रेंज जो आता है दैट इज 902। कूल। और जो लोअर लेवल होगा दैट विल बी 12,812। कूल, सिंपल। सो अब क्या करना है हमें? करंटली वी आर वेरी क्लोज टू सैप। अब सैप में ना ये जो हमने एक जोन बना दिया, मैं इसे हटा देता हूं, आई विल जस्ट रिमूव दिस। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टिल द टाइम वी आर अराउंड द अपर बाउंड्री और द लोअर बाउंड्री ऑफ सैप, डू नॉट इनिशिएट एनी ट्रेड। कोई भी ट्रेड इनिशिएट मत कीजिए, जस्ट बी देयर, हैंग इन देयर। और जब आपको एक क्लियर डायरेक्शनल बायस मिल जाएगा, यानी क्या होना चाहिए? लेट्स से टुमारो वी ओपन गैप डाउन, और गैप डाउन ओपन होके इफ वी आर क्लोजिंग अबव दिस, इफ वी ओपन गैप अप, तो आपको क्लियरली बुलिश ट्रेड ही लेना है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी अबव दिस अपर लेवल। हाँ, तो वो बुलिश ट्रेड ही रहेगा आपका विद दिस सेमी एनुअल पिवोट 15,857 एज योर स्टॉप लॉस। तो वो बुलिश ट्रेड ही आपका चलता जाएगा। बट इफ वी क्रिएट अ विपसॉ, अगर हम इस सैप की लेवल को ब्रेक करते हैं नीचे की तरफ, देन इन दैट केस we'll have to wait for this lower level to get cleared, और उसके बाद ही हम उसे शॉर्ट करेंगे। I hope whatever I'm sharing is absolutely clear to all of you. हाँ, सो सैप को ट्रेड करते समय भी you will get some whipsaws। यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार, जैसे मेरा मॉर्निंग का मैसेज था,
where I was talking about the structure is disturbed now. So eventually it will be difficult for Nifty to close above this level. तो डाउ थ्योरी का स्ट्रक्चर चेंज होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट अगर वो नहीं होता है और यहाँ पे एक लोअर हाई हो जाता है, so the next downwardly move will be quick, rapid. We are keeping both the options open at this point in time because the retracement is already done. We are expecting a rally. We are expecting a rally up till, let's say, 16,600, 16,800. That is only going to be possible once we take out this previous high. ये previous high अगर हम take out करते हैं, then and only then it is going to be possible. I hope there are no questions about it. अगर कोई है तो मुझे अभी पूछ लीजिए आप सवाल, अगर कोई सवाल है तो.